ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ PSPCL ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। हम लोगों ने इसका विरोध किया तो उसको 2 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन 2 जून को भी टोटल लॉकडाउन था। इसके बावजूद हम लोगों ने इसका विरोध किया। ग्रिड फेल हो गया होता तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक ना बचता। यह भारत के इंजीनियर्स ही थे, पावर इंजीनियर्स थे इस कंट्री के, जिन्होंने सक्सेसफुली प्राइम मिनिस्टर की उस काम को मैनेज किया। What we got in the return gift, खरीदने का भी पैसा नहीं होगा। और BSNL की कहानी दोहराई जा रही है। कल को ये नेटवर्क भी हमारा जो अरबों खरबों करोड़ रुपए खर्च करके बना है, यह प्राइवेट कंपनियों को कौड़ियों के दाम दे दिया जाएगा। कुल मिला के यह बिल न कर्मचारियों के हित में है, न आम जनता के हित में है, न सामान्य उपभोक्ताओं के हित में है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल हमारा निर्णय ये है कि पूरे देश में हम जागरूकता का अभियान चला रहे हैं और 23 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली होगी। रामलीला मैदान से शुरू होकर संसद तक मार्च करेंगे हम लोग और अपनी बात की ओर केंद्र सरकार का और पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेंगे। डायरेक्टर भी चोण पर की समझ नहीं तो किस तरह हैगा भी पीएस नहीं है ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੜਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡਹੌਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। स्टेट मिनिस्टर फॉर पावर, नाउ ही इज कैबिनेट मिनिस्टर फॉर पावर। अभी भी उन्हीं के हाथ में 2019 किसी प्रकार से साथी से 5 अप्रैल 2020 इट वाज अ टोटल लॉकडाउन, वैलिडेबल की सिचुएशन। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला की कहना चाहूँगा। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 यह जन विरोधी भी है, कर्मचारी विरोधी भी है।
लेकिन जोर जबरदस्ती से केंद्र सरकार इसको पारित करना चाहती है। बिजली कर्मी इस मामले में जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। अगर यह बिल पारित हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम कंज्यूमर्स को होने वाला है, क्योंकि बिल में एक बात बड़े साफ तौर पर लिखी हुई है, ऑल द प्रूडेंट कास्ट विल बी रिकवर्ड एंड सब्सिडीज एंड क्रॉस सब्सिडीज विल गो। इसका अर्थ ये होता है कि सारी लागत वसूल की जाएगी, और बिजली की लागत वसूल करने के बाद जब प्राइवेट कंपनियां आएंगी इस बिल के माध्यम से कम कंपनी एक्ट के अंतर्गत 16% का मुनाफा भी उनको मिलेगा। तो 10 रुपये से कम की बिजली किसी को नहीं मिल पाएगी, और 10 रुपये से कम की जब बिजली नहीं मिल पाएगी लोगों को, तो प्राइवेट कंपनियां तो मुनाफे में रहेंगी, आम जनता इससे घाटे में जाएगी। जो सरकारी डिस्कॉम है, सरकारी डिस्कॉम को नुकसान ये होगा कि सारा नेटवर्क सरकारी डिस्कॉम्स को मेंटेन करना है, सरकारी डिस्कॉम्स उस पर पैसा खर्च करेंगे। अभी इस नेटवर्क को हम लोगों ने लाखों करोड़ रुपए खर्च करके बनाया है, इसके मेंटेनेंस पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। नए कंज्यूमर बढ़ेंगे तो भी नेटवर्क हम ही को बनाना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनियां इस नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगी केवल व्हीलिंग चार्जेस देकर, जैसे छोटा किराया जिसको कहते हैं, ऐसे कुछ मामूली पेमेंट करके वह इसका इस्तेमाल करेंगे। प्राइवेट कंपनियां चेरी पिकिंग करेंगी। चेरी पिकिंग का अर्थ ये है कि घाटे वाले क्षेत्र में वो बिजली नहीं देंगी, वह बिजली देंगी केवल इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर्स को और बड़े उपभोक्ताओं को जिनसे मुनाफा मिलता है। तो बिना नेटवर्क पर कोई पैसा खर्च किए वह मुनाफे वाले उपभोक्ताओं को भी हमसे छीन लेंगे। नतीजा ये होगा कि गवर्नमेंट के डिस्कॉम जो है वो केवल घाटे की कंपनी बन के रह जाएंगे, उनके पास बिजली खरीदने का भी पैसा नहीं होगा। और BSNL की कहानी दोहराई जा रही है। कल को ये नेटवर्क भी हमारा जो अरबों खरबों करोड़ रुपए खर्च करके बना है, यह प्राइवेट कंपनियों को कौड़ियों के दाम दे दिया जाएगा। कुल मिला के यह बिल न कर्मचारियों के हित में है, न आम जनता के हित में है, न सामान्य उपभोक्ताओं के हित में है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल हमारा निर्णय ये है कि पूरे देश में हम जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, और 23 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली होगी, रामलीला मैदान से शुरू होकर संसद तक मार्च करेंगे हम लोग, और अपनी बात की ओर केंद्र सरकार का और पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेंगे। PSPCL के डायरेक्टर भी चोट पर की समझ नहीं।